So welcome guys to my YouTube channel Study Life 100. So one more good news from National Housing Bank. They have finally declared the result for assistant manager exam that was conducted on 18th of October 2020, and the candidates who have given the written, that is objective based exam, so they have a good news for them. The result is finally declared. So today I will be discussing about the same, and also I will discuss about the important points regarding an interview, because the next stage is interview and the final stage is interview. So it's very important to know all the facts of interview and all the aspects of interview that they need to prepare for the interview. So finally, let's start the video. So you all have seen that this result this result for the roll number for the shortlisted candidates for those who are selected for interview. All of you know that the exam was conducted on 18th of October, and you can see that recruitment of assistant manager scale 1. So I have count, and they have selected total of 168 candidates, 168 candidates for 16 seats, 16 vacancies. So their overall vacancies are 16, and they have selected 168 candidates. So the result is declared today, and if you haven't checked your roll number, then kindly go and check your roll number, that if you're selected for interview or not. So if you're selected for interview, then what other measures you need to follow, and what other things you need to take care, keep in your mind. So let's discuss about that. I will post this result in my telegram channel. If you haven't joined my telegram channel till now, then kindly go and join my telegram channel now. So let's talk about the important dates. So the result of online examination was supposed to be online examination was supposed to be declared in November December, and finally on 21st November they have declared the result. So I think they are going according to the dates they have declared. So in in some 1 or 2 months they are going to conduct the interview, and January or February they are finally going to they will surely going to conduct the interviews, and the result will be declared by February or March end. So candidates, be ready for the interview. Don't waste any time, because this is a very good opportunity for all of you who are selected. Don't miss this chance. Let's discuss about the pattern of the interview, which is very important for all of you. So let's see. So the category wise merit list will be prepared. So the interview, the list is prepared on the basis of the marks obtained in the mains exam. In relation to the number of vacancies, roll number of candidates are all, being given. We have seen that. And the important points: interview will be conducted at NHB head office in Delhi only. So candidates, please keep in mind that your interview is center will be only Delhi, in the head office of the National Housing Bank, not in anywhere in this in our country, in India. So be ready for this. That please don't ask that whether we can postpone the interview or whether we can change this center for the interview. No guys, you cannot change. They have written here. Please note that any request regarding the change in the date, time, interview date, time, center will not be entertained. So you will not be entertained if you want to change your date, time, or center of the exam interview. However, the bank, so this is interview, candidate may opt for interview in either Hindi or English. It's not necessary. Candidates, please keep in mind that it's not necessary. It's not mandatory that you have to give the interview in English only. If you are not much, don't have a good spoken in English, skill, then you can go for Hindi also, because interview is not about English or Hindi. It's about your personality. So don't be nervous, don't panic in the interview. Please prepare accordingly. Also, total marks for the interview will be 50. Total marks will be friends, 50. And also the minimum qualifying marks will be decided as well. So there is no minimum qualifying marks as of now, so they can decide anything according to their own. What is ratio of the online main examination will be 80:20. So मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी मेंस एग्जाम में आपके मार्क्स आएंगे उसका 80% लिया जाएगा, एंड इंटरव्यू में जितना भी आपका 50 होगा उसका 20% लिया जाएगा. लेट्स सपोज यू स्कोर 50 इन द इंटरव्यू, सो 40 का 20% लिया जाएगा. So it will be 8 marks. So this will be done accordingly. Also, final selection will be through the merit list, which will be prepared by adding the marks secured by candidates in online main exam and interview. तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि मेंस एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसको और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके ही बनाया जाएगा. Also, while appearing for the interview,
इन द कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस वैलिड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंट करना है। इफ़ यू आर नॉट presenting those documents, then you will not be allowed to give the interview. Please note this, that you won't be allowed to give the interview. Let's see the list of documents, important documents. uh, the following documents is original and self attested of फोटोकॉपीज़। सो आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है जो कि आप जिसके हर एक फ़ोटोकॉपी का आपका एक सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, मीन्स आपका सिग्नेचर होना चाहिए, एंड आपको हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके जाना है दोस्तों। यू कैन नॉट फेल टू प्रेजेंट दैट दो एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आस्क्ड। सो पहला जो होगा वो प्रिंट आउट होगा ऑफ द वैलिड जो इंटरव्यू जो कॉल लेटर आपको आएगा कुछ दिन बाद NHB के वेबसाइट पे वो अपडेट आ जाएगा। मैं आपको उसके लिए भी अपडेट बता दूंगा। इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। सेकंड, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंटेड आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है दोस्तों। यू कैन नॉट मिस इट। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। इट मे बी टेंथ पासिंग और बर्थ सर्टिफिकेट। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो कि जैसे कि वोटर ID हो गया, या आपका पैन कार्ड हो गया, या फिर आपका आधार कार्ड हो गया। सो फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए। मार्कशीट्स चाहिए आपके, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन किया है तो आपके मार्कशीट्स चाहिए होंगे जो भी डिक्लेयर्ड होंगे। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 के पहले ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। किसी का भी अगर मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे उसके बाद का डेट होगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होगा, SC ST या OBC से आप बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। At the time of interview, OBC candidates should bring the caste certificates. Those candidates who are from non-creamy layer of OBC, they need to prepare. They need to present their caste certificate. Please don't forget, friends. Also, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी आपको जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इनकम EWS, जितने भी EWS हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होना चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो उसी फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन फॉर्म आया था। अब एन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैज़ टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ सर्विस और डिस्चार्ज बैंक विथ पेंशन पेमेंट ऑर्डर एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रैंक लास्ट प्रेजेंटली हेल्ड इन द। तो जो भी कैंडिडेट्स एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनको क्या लेके जाना है, सर्विस और डिस्चार्ज बुक। जो भी उन्होंने जहाँ काम किया होगा उनको एक सर्विस बुक या डिस्चार्ज बुक लेके जाना पड़ेगा जिसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर का मेंशनिंग होना चाहिए, साफ साफ उसमें रहना चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ लास्ट रैंक, जहाँ भी वो काम कर रहे थे वो लास्ट रैंक उनका क्या था वो होना चाहिए उनके पास कि इस लास्ट रैंक पे मैं काम कर रहा था। कैंडिडेट्स हु आर इन गवर्नमेंट और पब्लिक PSU, उनको है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो दे नीड टू प्रोवाइड एन NOC इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स और एनी PSU, यू नीड टू प्रोवाइड NOC। ध्यान रखें दोस्तों, NOC लेके जाना मस्ट है, प्लीज़ भूलें ना इस चीज़ को। अगर आपने कहीं काम किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका ज़रूरी होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ना भूलें। अगर आपने कहीं काम, मान लीजिए आपने TCS में काम किया, किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया है, तो आप उतने टाइम का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाएँ, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ दें। ये हो गया। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर इंटरव्यू इफ सी फेल्स टू प्रोवाइड। तो मैंने बता दिया कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप मिस करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखें इस चीज़ का। और जो भी प्रॉपर फॉर्मेट में बोला गया उसी फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, अदरवाइज़ वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए अभी हम बोल नहीं सकते, बट मैक्सिमम टाइम वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएँ, एक एक डॉक्यूमेंट को लेके जाएँ। उसके बाद बात करते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता था आप सबके लिए, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया। ये 16 नंबर पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, क्या इसमें दिया हुआ है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है, 168 कैंडिडेट्स के लिए है जो कि इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। सो इसमें लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट आउट स्टेशन कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू शैल बी रीइंबर्स्ड टू एंड फ्रो सेकंड क्लास AC रेल टिकट, मेल एक्सप्रेस ओनली और बस फेयर थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट और एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इन विच एवर इज लोअर ऑन प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस ऑफ ट्रैवल। रिक्वेस्ट फॉर लोकल कन्वेंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ए कैंडिडेट इफ फाउंड इनएलिजिबल फॉर इंटरव्यू विल नॉट बी रीइंबर्स्ड एनी ट्रेवल फायर। मैं इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको, सही से अब सुन लें आप सब लोग। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं 168 कैंडिडेट्स, दोज हु आर आउटसाइड दिल्ली, मीन्स इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है दिल्ली में। तो अगर आप इसके बाहर, मान लिया आप किसी और स्टेट से, मान लेते हैं कि इफ़ यू बिलोंग टू बिहार, वेस्ट बंगाल, एनी अदर स्टेट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, सो आपको AC रेल टिकट मतलब सेकंड क्लास का होना चाहिए। सेकंड क्लास मतलब AC2, मिनिमम AC2
मैक्सिमम AC2 सॉरी दोस्तों, मैक्सिमम AC2 या AC3 भी आ जा सकते हैं। AC1 पे अलाउ नहीं है ये, AC2 पे होगा। AC2, AC3 या स्लीपर पे जा सकते हैं। मेल या एक्सप्रेस होना चाहिए, कोई राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस या जनशताब्दी एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, मेल एक्सप्रेस होना चाहिए, या बस फेयर थ्रू द शॉर्टेस्ट रूट। ध्यान रखें शॉर्टेस्ट रूट जो होना चाहिए वही होगा। ये नहीं कि आपका मान लीजिए बिहार से आपको दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है तो आपको वही डायरेक्ट ट्रेन लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बिहार से आप पहले भोपाल चले गए, फिर भोपाल में वहाँ से कोई दूसरी ट्रेन लेके जा रहे हैं, वैसा नहीं। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसी का आपको फेयर मिलेगा दोस्तों। वो भी तब मिलेगा जब आप एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपने कोई टिकट लिया होगा, अगर आपको वहाँ पे वो पूछा जाएगा कि आपने टिकट लिया है तो आप उसका टिकट का आपको सबमिट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, तो ही आपको वो उसका पैसा वापस किया जाएगा, रीइंबर्स किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है इट विल बी रीइंबर्स्ड, यहाँ दिया हुआ है रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब आपको वापस मिल जाएगा। लोकल कन्वेंस के लिए वो नहीं, मान लिया आप दिल्ली उतर गए, दिल्ली निजामुद्दीन उतर गए, वहाँ से आपको जाना है हेड ऑफिस तक, हेड क्वार्टर तक, तो नहीं, वो टैक्सी का फेयर आपको नहीं मिला जाएगा। लोकल कन्वेंस के लिए कुछ नहीं बोला गया इसमें। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई गई कि द कैंडिडेट्स हु आर इन एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इंटरव्यू, मान लिया कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको ही बस इसका मौका दिया जाएगा, मतलब उनका रीइंबर्समेंट का मौका दिया जाएगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको कि किस तरह चीज़ को आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं लगेंगे। तो अभी भी आपको अगर कोई डाउट है दोस्तों इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन करने की है कि क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज मैं इसके पहले 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। एक IPS PO का इंटरव्यू दे चुका हूँ, RRB PO का इंटरव्यू दे चुका हूँ, एंड IDBI PO का इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो मैंने 3 PO के इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे इंटरव्यू गए हैं मेरे। ऐसा नहीं है, मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपको भी इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। और क्योंकि नोटिफिकेशंस आएंगी आपको वीडियो देखने को मिलेगी, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RRB PO या IPS PO, SBI PO मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर EPFO एग्जाम्स, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ अपने सारे कैंडिडेट्स को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि सबको फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। थैंक यू।